انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو وہ ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھیپھڑوں کا کام آکسیجن پیدا کرنا ہے اور آکسیجن ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ انسانی جسم کی طرح ہماری زمین کے بھی پھیپھڑے ہیں جو اس کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، زمین کی 20% آکسیجن پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو جانوروں، حشرات الارض اور پرندوں کی لاکھوں اقسام کے مسکن ایمیزون کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایمیزون، جسے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ماہرین جنگلی حیات اور آثار قدیمہ کے مطابق یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ اس جنگل کا رقبہ پورے براعظم جنوبی امریکہ کا 20% رقبہ بنتا ہے، یعنی پاکستان جیسے 7 ملک اس جنگل میں سما سکتے ہیں۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا اور فرینچ گیانا شامل ہیں۔ ایمیزون 60% برازیل، 13% پیرو، 10% کولمبیا جبکہ 17% بقیہ 6 ممالک کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ 1540 میں ایک ہسپانوی سیاح فرانسسکو نے دریا ایمیزون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے تیپیواس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ فرانسسکو اوریلیانا نے وہاں عورتوں کو لڑائی کرتے دیکھا۔ یہ عورتیں شکل و شباہت میں قدیم یونانی جنگجو عورتوں کی طرح تھیں جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا۔ دوستو، دریائے ایمیزون حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی کل لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خشک موسم میں اس کے پاٹ کی چوڑائی 3 سے 9 کلومیٹر تک ہوتی ہے، جبکہ برسات کے موسم میں یہ پاٹ 48 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد حجم کے اعتبار سے دوسرے سے چھٹے نمبر پر آنے والے تمام دریاؤں کا پانی مل کر بھی اس کے حجم کے برابر نہیں ہے۔ یہ افریقی دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ہے۔ دریائے نیل ایمیزون سے تقریباً 300 کلومیٹر ہی زیادہ لمبا ہے۔ دریائے ایمیزون کا پانی بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے۔ دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کے کل حجم کا 5واں حصہ دریائے ایمیزون سے گرتا ہے۔ دوستو، ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا 20% میٹھا پانی دریائے ایمیزون سے سمندر میں جاتا ہے اور اس کے سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دریائے سندھ صرف 25,485 کیوبک پر سیکنڈ پانی سمندر میں گراتا ہے۔ دریائے ایمیزون کے معاون تقریباً 1100 نالے اور ندیاں اس جنگل میں بہتی ہیں، جن میں 17 نالے ایسے ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ندی نالے جنگلی حیات اور نباتات کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور انہی ندی نالوں کی بدولت اس جنگل میں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ دریائے ایمیزون کا ایک معاون نالہ ایسا بھی ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریا کے پانی کا درجہ حرارت 93 سینٹی گریڈ سے 110 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جانور اس میں گر جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوستو، اس جنگل میں رہنے والے حشرات الارض اور جانوروں کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 30% جانور اس جنگل میں رہتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں تقریباً 2 دہائیوں میں جنگلی جانوروں، حشرات اور پرندوں کی 2000 سے زائد ایسی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو کہ دنیا بھر میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ ان جانوروں میں بندر، چیتے، گوریلے وغیرہ کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ 430 ممالیہ جانوروں کی نئی اقسام کے علاوہ ایمیزون میں تقریباً 1500 پرندوں کی بھی ایسی اقسام موجود ہیں جو باقی دنیا میں ناپید ہیں۔ ان میں عقاب، طوطے، چڑیاں، بلبل اور اسی قسم کے کئی پرندوں کی اقسام شامل ہیں۔
इन परिंदों में सबसे मशहूर मकाओ तोता है, जो कई खूबसूरत रंगों में होता है। रेंगने वाले जानवर यानी रेप्टाइल्स की बात की जाए तो इनकी भी सैकड़ों ऐसी इकसाम यहाँ पाई जाती हैं जिनका वजूद सिर्फ इसी जंगल में है। इनमें कई किस्म के सांप, बिच्छू, कैचुए और मगरमच्छ शामिल हैं। जानवरों और परिंदों की इन 2000 इकसाम के अलावा अमेज़न के जंगलों में हशरातुल अर्ज़ की 25 लाख इकसाम पाई जाती हैं। अगर सिर्फ मकड़ियों की बात की जाए तो इस जंगल में 3000 मकड़ियों की इकसाम मौजूद हैं। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। इसके अलावा अमेज़न में मेंढकों की 120 ऐसी जहरीली इकसाम भी पाई जाती हैं जिनका जहर 10-15 अफराद को मौत के घाट उतार सकता है। ये मेंढक कई रंग में पाए जाते हैं और ज़्यादातर बारिशों में, बरसात में बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अमेज़न में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जो जब काटती है तो लगता है पिस्तौल या बंदूक की गोली लगी हो। इसका जहर इतना शदीद होता है कि कोई भी इंसान शदीद बुखार में मुब्तला होकर चंद मिनटों में ज़िंदगी की बाजी हार सकता है। इसीलिए इस चींटी को बुलेट आंट का नाम दिया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले एनाकोंडास भी इसी जंगल में पाए जाते हैं, जो इतने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन कहा जाता है कि ये पूरे जानवर को जिंदा निगल जाते हैं। अमेज़न के इन्हीं जंगलात में चमगादड़ों की एक ऐसी खूनख्वार किस्म पाई जाती है जो कि सोए हुए जानवरों के जिस्म में सुराख कर देते हैं और इस जानवर को इल्म तक नहीं होता। दोस्तों, अमेज़न में पाए जाने वाले खूनख्वार जानवरों में से सबसे खतरनाक जानवर जैगुआर यानी तेंदुआ समझा जाता है। इसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में होता है। ये वजन में चीते से भारी होता है। इसका सर भी चीते से कदरे बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ के जानवरों में आबी हयात की भी कई ऐसी इकसाम अपना वजूद रखती हैं जो बाकी दुनिया में हमें नजर नहीं आती। एक रिसर्च के मुताबिक अमेज़न के नदी नालों में मछलियों की 3000 इकसाम पाई जाती हैं। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि दुनिया की वाहिद पिंक डॉल्फिन भी अमेज़न के दरिया ही में पाई जाती है। अमेज़न में पौधों की 40,000 और मुख्तलिफुल अनवाह दरख्तों की तकरीबन 18,000 इकसाम पाई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न में इनफरादी तौर पर 390 बिलियन दरख्त मौजूद हैं। इनमें कुछ दरख्त तो इतने बड़े और घने हैं कि इनके नीचे 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है और अगर बारिश हो जाए तो बाज़ जगहों पर बारिश के पानी को ज़मीन तक पहुँचते 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इनमें से कुछ दरख्त 60 मीटर या 200 फीट से भी ज़्यादा चौड़े हैं। दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल दुनिया भर के जंगलात का 20% बनता है। एक रिसर्च के मुताबिक सारी दुनिया में हर बरस जो 200 बिलियन टन कार्बन दूसरे जंगलात जज़ब करते हैं, इनमें से 70 बिलियन टन यानी तकरीबन 35% अकेले अमेज़न के जंगल जज़ब करते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न के जंगलात हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, सिर्फ जानवर, नबातात और हशरातुल अर्ज़ ही नहीं बल्कि ये जंगल तकरीबन 2 से 3 करोड़ इंसानों का मस्कन भी है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के जंगल में तकरीबन 400 ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जिनका बाहर की दुनिया से राब्ता नहीं है। यानी ये जंगल ही उनके लिए कुल कायनात है। वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं ज़िंदगी गुजारते हैं और यहीं अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। इन कबाइल में वारी और कुलीना जैसे कबाइल के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो आदमखोर कबाइल थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इन कबाइल से बैरूनी दुनिया का राब्ता नामुमकिन सी बात नज़र आता है। ताहम कुछ कबाइल के बारे में मुहक्किकीन ने काफ़ी मालूमात इकट्ठी की हैं और इन कबाइल से अब माहिरीन राब्ते भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अमेज़न के जंगलों में एक ऐसे कबीले का पता चला है जिसके लोग तहजीब से इतने नाबल्द हैं कि 2 से ज़्यादा तक की गिनती नहीं कर सकते। डॉक्टर गॉर्डन के मुताबिक पिराहा कबीले के ये लोग गिनती के अलावा ना तो तस्वीर बना सकते हैं और ना ही सीधी लकीर खींच सकते हैं। इस कबीले की कुल आबादी 200 है। दोस्तों, जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं, अमेज़न जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन पूरी करता है। यूँ अगर देखा जाए तो न सिर्फ अमेज़न बल्कि दुनिया के बाकी तमाम जंगलात और इनमें मौजूद दरख्त भी इंसान के लिए नहायत ज़रूरी हैं। ये जंगलात कार्बन के अखराज को ज़ख़ीरा करके
ग्लोबल वार्मिंग में कमी भी लाने का बायस बनते हैं। इसलिए नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकी दुनिया के जंगलात की तरह अमेज़न भी इंसान के लालच और हवस से नहीं बच पाया। एक रिसर्च के मुताबिक 1950 से लेकर अब तक अमेज़न के जंगलात का तकरीबन 20% सफाया किया जा चुका है। एक और रिसर्च के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में बरसाती जंगलात का कुल 10,881 मुरब्बा किलोमीटर तबाह हो चुका है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस जंगल को कुदरती हादसात ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। 2019 में यहाँ लगने वाली आग के बायस लाखों जानवरों की हलाकतें हुईं और अमेज़न का 7,600 मुरब्बा किलोमीटर इसी आग में झुलस गया। माहिरीन के मुताबिक माजी करीब में ब्राज़ील की हुकूमत ने अमेज़न के जंगलात के इलाकों में एग्रीकल्चर और माइनिंग की हौसला अफजाई की है, जिसके नतीजे में जंगलात की कटाई में इजाफा हुआ है। न सिर्फ ब्राज़ील बल्कि अब पेरू और बोलीविया भी ब्राज़ील के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जंगलात न सिर्फ जंगली हयात के लिए ज़रूरी हैं बल्कि ये इंसान के लिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसलिए दोस्तों, दरख्तों की हिफाजत कीजिए क्योंकि ये नस्ल इंसानी की हिफाजत है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बहुत शुक्रिया।